بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور بے شمار درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب ماہ رمضان کے مقدس ایام سے گزر رہے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ افراد اور وہ حضرات جنہیں اللہ رب العزت نے نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق بخشی ہے، اور جو لوگ ان ایام کو اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک اور دیگر صدقہ و خیرات وغیرہ میں گزار رہے ہیں، لیکن بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے کو بھی سال کے دوسرے 11 مہینوں کی طرح گزار رہے ہیں، جن پر یہ مبارک مہینہ بھی اثر انداز نہیں ہوا اور یہ مبارک مہینے نے بھی ان کی زندگی پر کچھ تبدیلی نہیں پیدا کی۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جمعہ کا دن تھا، آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے پیارے رسول، آپ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے کچھ باتیں کہی، انہی باتوں کے پر میں نے حامی بھری اور آمین کہے۔ پہلی بات جبریل علیہ السلام نے یہ کہی کہ رغم انف رجل ذکرت من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس کے سامنے آپ میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ میں نے کہا کہ آمین، اس شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا، رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کی اس نے عبادت نہیں کی
अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी नहीं किया और अपनी बख्शिश को अल्लाह रब्बुल इज्जत से वाजिब नहीं कराया और रमजान का महीना गुजर गया, तो ऐसा शख्स भी क्या हो, हलाक व बर्बाद हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहे। गोया कि अगर रमजान का महीना हमसे यूं ही रुखसत हो जाता है और इस मुबारक महीने में हमें नेकियों की तौफीक नहीं मिलती है, तलावत कलाम पाक की तौफीक नहीं मिलती है, जिक्र अज़कार की तौफीक नहीं हासिल होती है, सदका व खैरात की तौफीक नहीं हासिल होती है, हम रातों में उठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर रोते गिड़गिड़ाते नहीं हैं, तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हक में शकावत और बदबख्ती लिख रखी है और हम बड़े ही बदनसीब हैं और बड़े ही बेतौफीक हैं। हमें अपने अमाल पर, अपने किरदार पर, अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि अगर हमारी हालत यह है तो हम जिब्रील अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी मलऊन हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए लानत की दुआ फरमाई। हाज़िरीन इकराम, इसी वजह से रमजान के जो अय्याम हमारे बीच रह गए हैं उनमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादतों को अंजाम दें, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होकर रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफी मांगें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे खुश होकर के हमारे गुनाहों पर आफू का कलम फेर दे, हमें माफ कर दे और हमें अपनी रजा का परवाना अता करे। हाज़िरीन इकराम, एक तरफ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अगर रमजान का महीना कोई पाता है और उसमें इबादतों को अंजाम दे करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत को वाजिब नहीं कर लेता तो ऐसा शख्स काबिल लानत है। और दूसरी तरफ हमारा अमल किरदार क्या है, हमारी हालत क्या है, क्या हमारा रुझान, हमारी तबीयत किताब और सुन्नत की तरफ माइल हुई है? अगर हम अपना जायजा लेते हैं तो मालूम चलेगा कि हम हर महाज पर फेल हैं। हम अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में अपने आप को टटोलते हैं तो पाते हैं कि हमारा अमल भी, हमारा अखलाक भी, हमारा किरदार भी सब खोखले हो चले हैं। हमारे अंदर और रूहानियत बाकी नहीं रही है। हम वक्ती तौर के लिए हमारे जज्बात को मुहमेज लगता है, हम मस्जिदों में हाजिर होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अमाल करते हैं जिनसे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ मना फरमाया है। ये आखिरी अशरा जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसके बारे में माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि काना इदा दखल अल-अश्हुर अवाखिर, कि जब आखिरी अशरा आता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह हो जाती शद्द मिज़रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लिया करते थे, इबादतों के लिए अपनी कमर कस लेते थे। वह अहया लैलहू, रातों को जागा करते थे, रातों में जाग कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या होती थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम गुनाह माफ फरमा दिए थे। उसके बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में जाग कर तहज्जुद की नमाज, क़ियामुल लैल, तरावीह इस कसरत से पढ़ा करते थे कि आपके पैरों में सूजन आ जाया करता था। साहबे किराम आपको देख करके आप पर तरस खाते और कहते थे अल्लाह के रसूल आप अपनी जान को इतनी क्यों खपाते हैं, आपको इस कदर इबादत करने की क्या जरूरत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है, फिर आप अपने आप को इतना परेशान क्यों करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम है क्या कहा करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अफला अकुना अब्दन शकूरा, कि जिस अल्लाह ने मेरे साथ इस कदर एहसान किया है
कि मेरे अगले पिछले सभी गुनाहों को माफ कर दिया है, क्या मैं उसके शुक्रिया में नमाज और तहज्जुद और क़यामुल लैल और तरावी भी न करूं? हाज़िरीन किराम, हम सोचें, देखें, अपना जायजा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस जैसी किताब नाज़िल हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाहि फलहु अशरु हसनात, कि अगर कोई शख्स कुरान करीम की का एक लफ्ज़ पढ़ता है तो उसे 10 नेकियां हासिल होती हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किराम वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअक्कउ फीही फलहु अजरान, कि अगर कोई शख्स कुरान करीम को पढ़ने में माहिर है, कुरान करीम बड़े फर्राटेदार बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ता है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसा शख्स क़यामत के रोज बरगुज़ीदा फरिश्तों के साथ होगा, पाकबाज फरिश्तों के साथ होगा। लेकिन इससे उन लोगों को कभी ना खातिर और परेशान होने की जरूरत नहीं है जो कुरान को अटक अटक कर पढ़ते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में यह मुजदा और खुशखबरी सुनाई है कि अगर कोई शख्स कुरान पढ़ता है और कुरान करीम को पढ़ने में अटकता है, उसे दुश्वारी होती है, कुरान करीम को अटक अटक करके पढ़ता है, बहुत उससे परेशानी होती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान के बारे में फरमाया, फलहु अजरान, ऐसे शख्स को दोहरी नेकियां मिलती हैं, ऐसे शख्स को दोहरी नेकियां मिलती हैं। एक तो कुरान पढ़ रहा है उसकी नेकी, और दूसरा जो उसको पढ़ने में मुशक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो परेशानी के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहा है, उसकी नेकी भी हासिल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से अपना रिश्ता रखने वाले के बारे में क्या फरमाया? आपने सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के रोज कहेगा कि इक़रा वर्तक़ कमा कुंता वरतिल कुरान कमा कुंता तुरतिल फिद दुनिया, कि कुरान पढ़ो, जन्नत की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ, और तुम्हारा आखिरी मर्तबा, तुम्हारा आखिरी मकाम वहां होगा जहां तुम कुरान करीम की आखिरी आयत पढ़ोगे। अल्लाहु अकबर, यह कुरान का मकाम और मर्तबा किस कदर अजीम है। आप गौर करें कि अगर आप कुरान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, कुरान करीम को पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत न ये कि आपको पूरे रूसिल अशहाद, पूरी मखलूकात के सामने आपकी इज्जत अफजाई करेगा, बल्कि आपके वालिदैन को क़यामत के रोज पूरी मखलूकात के सामने खड़ा करेगा, और पूरी मखलूकात के सामने कुरान से ताल्लुक रखने वाले शख्स के वालिदैन को बुला करके उनके सर पर ताज रखेगा, ताजुल करामा रखेगा। ये किसकी फजीलत है? उस शख्स की जो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ता है, कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बेहतर वो नहीं है जो उम्दा किसी व्यक्ताई लगाता हो, शर्ट पहनता हो, पैंट पहनता हो, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत और खैरियत का मियार बताया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वह है जो कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है। हाज़िरीन इकराम, इस कुरान से हमारा ताल्लुक क्या है हम सबको मालूम है। क्या हम कुरान को पढ़ते हैं? क्या हम कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते हैं? क्या हमारा ताल्लुक कुरान के साथ नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुई, कुरान करीम जैसी किताब नाजिल हुई, और अल्लाह के रसूल का मामूल ये था कि रमजान के मुकद्दस महीने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आकर के आपको कुरान का मुज़ाकरा कराया करते थे, कुरान का मुदारसा कराया करते थे, कुरान का दौर कराया करते थे, कुरान को पढ़ाया करते थे। ये कौन था? ये ओ हस्ती थी जिस पर कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब नाजिल हुई थी। कुरान से उसका ताल्लुक ये था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खुसूसी तौर पर रमजान के महीने में भेजते और वो आपको कुरान का दौर कराया करते थे। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम मौलवी हो गए, हम मौलाना हो गए, हमें कुरान पढ़ने की जरूरत बाकी नहीं रही। आज हमारे घरों से कुरान की आवाज नहीं आती है, हमारे घरों से गाने की आवाज आती है, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल गना युनफिकुन निफाक फिल कल्ब कमा युनफिकुल माउ अल कला,
कि गाना दिलों के अंदर निफाक को वैसे ही जन्म देता है जिस तरह से घास पानी को पा करके हरा और खिलखिला उठता है। हाज़रीन इकराम, गौर करने का मकाम है। आप इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस ताअम्मुल को देखिए। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक वादी से गुजर रहे थे, उनके कानों में मौसीकी की आवाज आती है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शिद्दत तमस्सुक सुन्नत में इस कदर मारूफ हैं कि हज के लिए जब तशरीफ ले जाते थे और नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदाहो अबी व उम्मी के बारे में मालूम होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर बैठ करके इस्तिंजा फरमाया करते थे। इब्न उमर वहां रुकते थे। वहां पे आपको जरूरत नहीं होती थी पेशाब करने की, आपको जरूरत नहीं होती थी कज़ा हाजत की, फिर भी इब्न उमर उस जगह पे उतरते और वहां पे बैठते, सिर्फ इस वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो सके, इत्तिबा हो सके। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा लगाव हमारा है? क्या हमारा ऐसा ताअम्मुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और आपकी सीरत के साथ है? क्या हमने अपने अखलाक और किरदार को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साके में ढाला है? क्या हम लोगों के साथ वैसा ही ताअम्मुल करते हैं जैसा कि नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है? अगर हमारा सीरत और किरदार, हमारी सीरत, हमारा किरदार, हमारा अखलाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है तो माफ कीजिए, यह हमारी इबादतें, हमारा रोजा, हमारा सदका और खैरात ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि क़यामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से सहाबा किराम से पूछा कि अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? क्या तुम जानते हो गदागर, फकीर, मुहताज कौन है? सहाबा किराम ने कहा कि हाँ, हम तो फकीर और मुहताज उसी को जानते हैं जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, रुपये पैसे ना हो, टके ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है जिसके पास दिरहम दीनार ना हो। मेरी उम्मत का मुफलिस वो इंसान होगा जो क़यामत के दिन आएगा और उसके साथ नेकियों का पहाड़ होगा, अपने साथ नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा, लेकिन उसकी हालत यह होगी कि किसी को गाली दिया होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी के साथ वो किसी के माल को हड़पा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसकी नेकियों से लेकर के, जिसके साथ उसने दुश्मन तराजी की होगी, जिसकी इज्जत पे कीचड़ उछाला होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नेकियों को ले लेकर के उसको दे देगा और ये शख्स इसकी हालत इतनी पतली हो जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको जहन्नम में डाल देगा। इन अहादीस की रोशनी में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमात की रोशनी में अपने सीरत और किरदार को ढालने की जरूरत है, वरना हम लाख अपने आप को अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान और इस तरह से नाम रखते रहें, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि याती अलन्नासी ज़मानुन ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुह, कि एक जमाना आएगा कि सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा। लोग अपने आप को अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान कहेंगे। ये रमजान का मुकद्दस महीना है, रमजान में हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सीरत और किरदार को अपनाने की जरूरत है। अगर दूसरे महीनों में अपने पड़ोसियों की खबरगिरी नहीं किया करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें माफी मांगने की जरूरत है, लेकिन इस मुबारक महीने से हमें शुरुआत करने की जरूरत है। हमें शुरुआत करने, जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी की ताकीद किया करते थे। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु, कि जब भी नबी अकरम जिब्रील अलैहिस्सलाम आते तो मुझे पड़ोसी के बारे में कहते कि उसके साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। मुझे ऐसा ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो कि इस्लाम में पड़ोसियों को मीराथ में हक दे दिया जाए। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं ख़वातीन के अंदर एक दूसरे को हकीर जानने की सोच बहुत ज्यादा मौजूद होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को मुखातब करते हुए कहा था, या निसा अल मुस्लिमात, ऐ औरतों, इफ़्फ़त माओ, बहनों, सुनो,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिन, कोई पड़ोसन किसी पड़ोसन को हकीर न जाने, वला फिरसन शाति, अगर जरूरत पड़े तो अपने पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसन के यहाँ बकरी का एक खुर ही तोहफे में भेज दिया कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दर, ये वही अबू दर हैं जिन्होंने एक मौके से बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या ताना दे दिया था, कह दिया था कि यब्न उम्मी सौदा, ऐ काली कलौटी माँ के बेटे, यानी बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सांवले थे, उनको ताना दे दिया था यब्न उम्मी सौदा, ऐ काली कलौटी माँ के बेटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन्नका इम्राउन फीका जाहिलिया, इन्नका इम्राउन फीका जाहिलिया, तुम ऐसे इंसान हो जिसके अंदर जाहिलियत की बू पाई जाती है। उसके बाद हमेशा जब भी बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चला करते थे तो क्या होता था, जरूरत पड़ती थी तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके जूते अपने कंधों पे रख लिया करते थे। ये अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये सीखा था और हमेशा उनको सरदार कह के पुकारा करते थे। किनको? बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, जो इतने काले कलौटे थे। मैं अर्ज कर रहा था कि हम एक दूसरे को हकीर जानते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ा सा माल क्या दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के अंदर भी इस तरह की एक मौके से इसका मजहर देखने को मिला था। एक सहाबिया ने, यानी उम्महातुल मोमिनीन में से एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, दूसरी बीवी के ताल्लुक से कह दिया कि क्या आप उसका हमेशा नाम लेते रहते हैं, क्यों आप उसका तस्करा करते रहते हैं, वो तो काली कलौटी है, वो तो नाटी है, उसका कद बहुत पस्त है, वो छोटी है। मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से क्या कहा था कि इन्नका कुल्ल कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरि लमज़जतु, तुमने ऐसी बात कही है कि अगर इस बात को समुंदर के अंदर भी डाल दिया जाए तो उसका पानी भी बदल जाए। उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका कद पस्त किया है, उसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसको पस्ता कद होकर होने का ताना क्यों दे रही हो। और हमारे अंदर क्या है, हम तो बेख्याली में सबको एक ही डंडे से आंकते रहते हैं, जबकि इस्लाम ने सबसे पहला तालीम, सबसे पहली तालीम यही दिया था कि ला फद्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी, किसी भी अरबी को किसी अजमी पर, वला लि अस्वद अला अबयद, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। हाँ, अगर किसी को कुछ फजीलत हासिल है तो सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर, अगर फजीलत है तो है। कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपकी खिलकत मिट्टी से हुई। जब सब लोग मिट्टी से पैदा हुए हो तो फिर ये फख्र, किब्र, नखुवत, घमंड, हसद, इस बात का जरूरत इस बात की है कि हम अपने अखलाक और किरदार को दुरुस्त करें, हम अपने आप को इस्लाम के सांचे में डालें, अपने दिल को दुरुस्त करें, क्योंकि ये गोश्त का छोटा सा लोथड़ा अगर इसकी इस्लाह कर ले गए तो यकीन जानिए कि बहुत सी बुराइयों से आप बच जाएंगे। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने से पहले इसी दिल की पास सबसे पहले सफाई की गई। आप बकरियां चरा रहे थे तो फरिश्ते ने आकर के आपके सीने को चाक किया था और उससे उस लोथड़े को निकाल करके फेंक दिया था, जिससे इंसान बुराई पर आमादा होता है। इसी तरह से जब आपको मेहराज कराई गई उस मौके पर भी आपको ये वाकया पेश आया था और आपका सीना चाक किया गया था। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपनी इस्लाह पर गौर कीजिए। आप एक महीना नमाज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मुआशरे और पूरे मोहल्ले के लोग को बेनमाजी कहना शुरू कर दें। आप रोजा रख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप पूरे मोहल्ले के लोगों को ये कहना शुरू कर दें कि वो रोजा नहीं रखता है। आप उसके पास जाएं, बैठें, उससे बात करें। हो सकता है कि उसके पास कोई उज्र हो, शरई उज्र मौजूद हो, बीमार हो, तो आप अगर उसके पास जाएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे तो उस सूरत में उसके हालत को जानेंगे। और आपको मालूम है कि एक इंसान जब मरीज की इयादत के लिए जाता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो जन्नत के बागों में चल रहा होता है। आप अगर किसी मुस्लिम भाई की इयादत करने के लिए जा रहे हैं तो गोया कि आप जन्नत के बागों में जा रहे हैं। 70,000 फरिश्ते आपके
नीचे आपके पांव के नीचे अपने पर बिछाए हुए होते हैं। क्या किसी अमल के लिए ये फजीलत काफी नहीं है कि आप इस अमल को अंजाम दें? हाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स रोजा नहीं रखता है तो आप वो हदीस बयान करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से एक ख्वाब देखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, दो फरिश्ते आए और दोनों ने आपके बाजुओं में हाथ लगाया और एक बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ी के पास ले गए, ऊंचे पहाड़ की तरफ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इस पर चढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस पर चढ़ सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन फरिश्तों ने कहा, आप चढ़े तो सही, हम आपकी मदद करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ना शुरू किया। आप जब ऊपर गए तो आपने सख्त किस्म की आवाजें सुनी, चीखो पुकार की आवाजें सुनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसी आवाज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हादा अवाउ अहलिन नार, कि ये जहन्नमियों की चीख पुकार है। जहन्नमियों की चीख पुकार है, वही जहन्नम जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि युता बिजहन्नमा यौमल क़ियामह बिसबईन अल्फ ज़माम व फी कुल्ली ज़मामिन बिसबईन अल्फ मलाइका यजरुना, कि जहन्नम को क़यामत के दिन 70,000 लगाम के साथ लाया जाएगा। यानी जहन्नम जब लाई जाएगी तो उसके 70,000 लगाम लगे होंगे और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींच रहे होंगे। आप तसव्वुर करें कि जहन्नम कितनी बड़ी मखलूक है। तो बयान फरमाया कि ये जहन्नमियों की चीख पुकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ले जाया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि उनको एड़ियों के बल लटका दिया गया था, एड़ियों के बल बांध कर लटका दिया गया था। उनके जबड़े चीरे हुए थे, जबड़ों से खून बह रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हालत देखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन लोग हैं, यह दर्दनाक अजाब किनको दिया जा रहा है? फरिश्तों ने बताया कि अल्लज़ीना युफ्तिरूना क़ब्ल तहिल्लत सौमिही, ये वो लोग हैं जो रमजान के दिनों में अफ्तार से पहले खाते पीते थे, जो रमजान के दिनों में अफ्तार से पहले खाया पिया करते थे। यानी अगर आप रोजा नहीं रखते हैं तो ये आपके लिए वईद है, यह आपके लिए वईद है। आप हो सकता है कि होटलों में पर्दे लगे हुए हों, अंदर बैठ के खा रहे हों, लेकिन क्या आप इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत काली रात में काले पत्थर पर जो काली चींटी रेखती है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जानता है, उसके भी नक्ल हरकत पर खबर रखता है, उसके ताल्लुक से भी जानकारी रखता है। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप अगर होटलों में पर्दा लगा लेंगे और अंदर आप छुप करके खाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जान नहीं पाएगा। आप अपना ईमान और अकीदा दुरुस्त कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अल्लाह जानिए। ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपने एक मुजस्समा तस्वुर कर लिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ऊपर है, हम नीचे क्या कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नौज़ुबिल्लाह। अगर ऐसा आपका अकीदा है तो आप तौबा कीजिए, आप मुसलमान नहीं हैं। हाज़रीन इकराम, वक्त चूंकि ज्यादा हो गया, मैं चलते चलते बस इतना बता दूं कि ये आखिरी अशरा गुजर रहा है। इसी अशरे में आपको सदक़े फित्र अदा करना है। सदक़े फित्र जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इब्न उमर कहते हैं कि फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फित्री साअम मिन बुर्रिन व साअम मिन शईर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर, एक सा गंदुम, एक सा जौ या एक सा किशमिश सदक़े फित्र के तौर पर हर इंसान के ऊपर फर्ज किया है। हर इंसान के ऊपर, जो मुसलमान है, अब चाहे वो आजाद हो या गुलाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, सबके ऊपर फर्ज है। यहाँ तक कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि जो बच्चा हमल से होता, माँ की पेट में होता, उसका भी सदक़े फित्र निकाला करते थे, उसकी तरफ से भी सदक़े फित्र दिया करते थे। तो एक सा तकरीबन 2.5 किलो वजन होता है। आप लोग सदक़े फित्र इस आखिरी अशरे में निकालें। और इसी तरह से इसको कब निकालना है? ईद की नमाज से पहले पहले निकालना है। ईद के दिन ईद की नमाज से पहले पहले निकालना है। मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिय ज़कातुन
मकबूला वमन अद्दाहा बाद सलाती फहिय सदक़तुम मिन सदक़ात। अगर आपने ईद की नमाज से पहले निकाल दिया तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मकबूल सदका है, लेकिन अगर ईद की नमाज के बाद निकाला तो ये आम सदका की तरह एक सदका होगा, सदका फित्र नहीं होगा। इसी तरह से सवाल पैदा होता है कि सदका फित्र को क्यों वाजिब किया गया है, सदका फित्र क्यों वाजिब है? तो इसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यह तुहरतल लिस्साइम मिनर रफस, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा इंसान के ऊपर वाजिब किया है और इसका बेपनाह अजर सवाब मुतय्यन किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में हो तो रोजे की हालत में किसी को से गाली गलौज न करे, झगड़ा न करे। अगर कोई शख्स आपसे झगड़ा कर रहा है तो आप उसे कह दें कि इन्नी साइम, लेकिन फिर भी इंसान इंसान है, उससे गलती हो जाती है, तो उस गलती के कफारे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया है, सदका फित्र को वाजिब करार दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र को जरूरी करार दिया है। और इसी तरह से दूसरा सबब हदीसों में है कि तुअमतल लिल मसाकीन। जाहिर सी बात है कि मुआशरे में, सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हालत पतली होती है, जिनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालदारों पर, साहब हैसियत लोगों पर सदका फित्र वाजिब किया है ताकि ईद की खुशियों में पूरा समाज, पूरा मुआशरा, पूरा सोसाइटी शरीक हो सके। कोई ऐसा फर्द न बाकी रहे कि जो उस दिन अपने खाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरे, दर दर की चक्कर लगाता फिरे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र को इसलिए भी वाजिब किया है। सदका फित्र को एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले अदा कर देना यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, इससे गुरेज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सदका फित्र को एक दिन पहले यानी ईद से एक दिन पहले अदा कर सकते हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फितराने को एक दिन पहले अदा करते थे, इससे पहले फितरे को अदा करना यह हदीसों से साबित नहीं है। एक बहुत अहम मसला यह होता है कि क्या फितराने में कीमत अदा कर सकते हैं या नहीं। बेहतर यही है कि आप जो 2.5 किलो जाकर के चावल खरीदें, यानी फीकस एक आदमी की तरफ से 2.5 किलो चावल खरीदें और किसी गरीब के यहाँ पहुंचा दें, तमाम अख्तलाफात से बच के लिए, तमाम अख्तलाफात, क्योंकि आप जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दिरहम व दनानीर मौजूद थे, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी हदीस में यह साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कीमत फितराने में अदा किया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराने में, फितरे में कभी भी कीमत, रुपया पैसा नहीं निकाला। तो असल यह है कि वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए उस्वा और आइडियल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब इस जमाने में यह कहना कि फकीर पैसे का ज्यादा मोहताज है, इस्लाम ने पैसा देने के लिए कुछ और रास्ते भी बताए हैं। आप सदका करें, ज़कात दें, आपके लिए दूसरे रास्ते मौजूद हैं। लेकिन फितरे को कीमत में कन्वर्ट करके फितरा देना यह बहरहाल बहुत दुरुस्त बात नहीं है। आप फितराने में कोशिश करें कि आप गल्ला यानी चावल या इस तरह से जो भी आप खुराक खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, 2.5 किलो खजूर आप जाए खरीद लें और किसी गरीब के यहाँ पहुंचा दें। तो इन चीजों को, इससे आप इख्तलाफ से भी बच जाएंगे और दूसरी बात यह है कि मुआशरे में जो लोग मोहताज हैं उनके लिए खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम इन हकायक पर गौर करें और ये जो अय्याम बच गए हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना ताल्लुक जोड़ें। 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, ये और आते हैं जिनके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि इल्तमिसु लैलतुल क़द्री फिल अश्रिल अवाखिर मिन वित्र, कि शब कदर को आखिरी अशरे की 7 रातों में तलाश करो। तो उसकी 3 रातें अभी हमारे पास मौजूद हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा रातों को जाग करके हम इबादत करें, क्योंकि शब कदर ये 1000 रातों से बेहतर है। और
इस तरह यानी शब बारात में हम जाग लेते हैं और सोचते हैं कि बस हम बख्शे बख्शाए गए, अब मजीद किसी रात में जागने की जरूरत नहीं है, जो कि गलत है। इसी तरह से हम में से बहुत सारे लोग तरावी से फारिग हो चुके हैं, यानी अब वो तरावी नहीं पढ़ते हैं, हालांकि ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट अशरा चल रहा है, सबसे फजीलत याफ्ता अशरा चल रहा है। इस अशरे में आप मस्जिदों में जाकर के तरावी का एहतमाम जरूर करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मन कामा मअल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिबा लहु क़ियामुल लैलतिन, कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ क़ियामुल लैल करता है तो उसके लिए सारी रात क़ियामुल लैल का सवाब लिखा जाता है। आप इमाम के साथ मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ें तो आपको सारी रात क़ियामुल लैल का सवाब हासिल होगा। अगर आपकी मस्जिद में कुरान खत्म हो चुका है तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि तरावी से आप सुबकदोश हो गए हैं, आपके ऊपर अब जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, आप उन मस्जिदों में जाएं या उसी इमाम जो आपके यहाँ इमाम हो उससे कहें कि वो तरावी की नमाज का एहतमाम करें, क्योंकि तरावी की नमाज ये पूरे रमजान में पढ़ी जाती है, सिर्फ कुछ अय्याम के साथ खास नहीं है। इसी तरह से इस आखिरी अशरे में मजीद एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ, आप सदका तो खैरात का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें, ज्यादा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, कान रसूलुल्लाह अजवद अन्नास व अजवद मा यकून फी रमजान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा सखी इंसान थे और आपकी सखावत रमजान के महीने में बढ़ जाया करती थी। आपकी सखावत यहाँ तक की रवायतों में आता है, आप चलने वाली हवाओं से भी ज्यादा सखी हो जाया करते थे। आपने हवा को देखा होगा, जब वो चलती है तो उसकी ठंडक हर इंसान के को महसूस होती है, और किसी जैद बकर काले गोरे अरबी अजमी में कोई तफरीक नहीं करती है। उसी तरह से आपकी सखावत इतनी होनी चाहिए कि हर इंसान, सिर्फ गरीब नहीं, कि सिर्फ मोहताज नहीं, बल्कि हर इंसान आपकी सखावत से को महसूस करे। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को ताकीद की है, क्योंकि ये दुनिया बहुत मुख्तसर है। दुनिया जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को एक मौके से मरी हुई बकरी से दिया था और कहा था कि क्या तुम इस बकरी को, एक मरी हुई बकरी थी, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि क्या तुम इस बकरी को खरीदना चाहोगे? कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मरी हुई बकरी कौन खरीदना चाहेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया इससे भी बदतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सफा मिनहा काफिरन मिनहा बिशै, कि अगर काफिर को अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी काफिर को एक घोंट पानी भी मैसर न करे। बहरहाल आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि बारह तो हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अर्ज़ानी फरमा। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अजल्लु व अकम्मु व अकबर वल्लाहु अअलमु बिमा तस्नऊन।